Good morning dear students. In the previous class we have discussed about the two types of carbohydrates that were monosaccharides and oligosaccharides. We said that monosaccharides are having the presence of a single monomeric unit that is commonly known as sugars. Monosaccharides are sweet in taste, soluble in water and can easily pass through the plasma membrane. Oligosaccharides were made up of condensation of about 2 to 7 monosaccharides. तो जब 2 to 7 monosaccharides polymerize होते हैं by using a water molecule between them and forming a glycosidic bond, they will be known as oligosaccharides. The most common oligosaccharides were disaccharides, जिसमें आ जाता है sucrose. It also includes the maltose. It also includes the lactose. Then we have started with polysaccharides. तो अब कब हम carbohydrates को polysaccharides कह सकते हैं? We can say it as a polysaccharide if it has more than 10 monosaccharide units. 10 से ज्यादा अगर monosaccharides हैं तो हम उसे एक polysaccharide कहेंगे. और पॉलीसैकेराइड में भी बीच में तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स. तो हमने पॉलीसैकेराइड्स में देखा था दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, दैट इज homopolysaccharides and heteropolysaccharides. Homo are the one that are made up of the same type of monosaccharide which gets repeated. मतलब अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज अगर मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो जाता है और वो जो पॉलीसैकेराइड बनता है तो उसे हम कहेंगे होमो. पर हेटेरो कब कहेंगे? When there are two or more different types of monosaccharides involved in the formation of the polysaccharide. दो से ज्यादा तरह के मोनोसैकेराइड्स जब यूनाइट होते हैं, अलग अलग मोनोसैकेराइड्स जब मिलके एक चेन बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स. हमने ये देखा था कि पॉलीसैकेराइड्स में एग्जांपल्स की अगर बात करें तो आइदर सम ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स विल बी फूड स्टोरिंग पॉलीसैकेराइड्स, सम ऑफ देम विल बी आइदर स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड. तो फूड स्टोरिंग में हमने दो एग्जांपल्स नोटिस किए थे, दैट वाज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट व्हाट इज स्टार्च, how where it is formed and what is glycogen, right? So in polysaccharides we are first going to talk about the starch. Students, आपके टेक्स्ट बुक में मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स नहीं दिया गया है. There is only one topic of polysaccharides that is being given in your textbook. Okay, so we are actually dealing with the entire thing. We are discussing all the types of carbohydrates instead of directly talking about polysaccharides. Okay, so you may have to take into notice according to your textbooks also. So here we talk about the starch. जो starch है that is the end product of photosynthesis. Starch जो होता है it is the end product of फोटोसिंथेसिस. और स्टार्च जो है वो फोटोसिंथेसिस की एंड प्रोडक्ट तो है, पर हम स्टार्च किस फॉर्म में खाते हैं? सो वी ऑब्टेन द स्टार्च फ्रॉम. हमें स्टार्च कहां से मिलता है? सो फर्स्ट कॉमन सोर्स इज द ग्रेन्स. ग्रेन्स मतलब जो सीरियल ग्रेन्स हम खाते हैं, व्हीट एंड राइस, दे आर अ गुड सोर्स ऑफ स्टार्च. Other than that, potatoes or you can say banana, these all are the sources of the starch. इन सब में से हमें starch, हम जब potato खाते हैं तो potato consists of immense starch, right? Banana, grains, इन सब में से हमें starch मिलता है. तो starch जो है it is stored in the form, मतलब कहाँ पे store होता है प्लांट में? तो प्लांट्स जो है उनके पास स्पेशलाइज्ड पिगमेंटेड मतलब प्लास्टिड्स होती हैं, नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट. और ल्यूकोप्लास्ट में भी स्टार्च स्टोरिंग प्लास्टिड इज नोन एज अमाइलोप्लास्ट. ओके, सो इट इज stored
in the leucoplast, and that also specialized leucoplast called amyloplast. तो जो स्टार्च होता है वो एक स्पेशलाइज्ड ल्यूकोप्लास्ट में लोकेटेड है जिसे अमाइलोप्लास्ट भी कहा जाता है, राइट? देयर वर 3 टाइप्स इन इट, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड इलियोप्लास्ट. जो स्टार्च को स्टोर करते हैं अमाइलोप्लास्ट कहा जाता है. सो इट इज स्टोर्ड इन ल्यूकोप्लास्ट एंड इट इज प्रेजेंट in the form of starch grains. ये स्टोर तो अमाइलोप्लास्ट में होता है पर ये ग्रेन स्टार्च ग्रेन्स के फॉर्म में होता है. स्टार्च ग्रेन, सिंपल स्टार्च ग्रेन अपीयर्स लाइक दिस. ऐसा दिखेगा. ये जो ओपनिंग है उसे हिलम कहा जाता है. एंड देयर विल बी मल्टीपल इसेंट्रिक लेयर्स. इसेंट्रिक मतलब सेंटर जो है वो साइड पे है और मल्टीपल लेयर्स में स्टार्च जो है वो अरेंज हो जाता है. वैसे तो ये स्टार्च ग्रेन मैंने सिंपल ड्रॉ की है, कॉम्प्लेक्स स्टार्च ग्रेन्स भी होती है. मतलब कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जैसे कि लेग्यूम्स होते हैं, राइट, पल्सेस जो होते हैं उनमें जो स्टार्च स्टोर होता है वो कॉम्प्लेक्स ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर होता है. पोटैटो जैसे किसी और वेजिटेबल्स और सब्सटेंसेस में ये सिंपल ग्रेन्स के फॉर्म में भी होता है. But we don't need to go in detail about different types of starch grains. We can just remember that the starch is being stored in the form of starch grains. Okay. Now another thing is that the starch is stored in the form of starch grains. That is true. But ये जो starch होता है it itself includes 2 components, amylose and amylopectin. तो starch जो है इनमें 2 कंपोनेंट्स आ जाते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन. अब इनमें से अमाइलोज जो है, बोथ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन आर हैविंग प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एज अ रिपीटिंग यूनिट. अल्फा ग्लूकोज जो है वो इनमें रिपीटिंग यूनिट होता है. मतलब जो मल्टीपल टाइम्स जो रिपीट होने वाला है वो ग्लूकोज ही है. पर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस क्या है? तो अमाइलोज जो होता है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज. इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज. तो एक ग्लूकोज के स्ट्रेट चेन के फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा, मतलब ऐसे. दिस इज द स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज. आर यू गेटिंग इट? मल्टीपल टाइम्स इट इज गोइंग टू बी रिपीटेड बट इसे स्ट्रेट चेन कहते हैं. और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 1 and 4, राइट? दिस इज द फर्स्ट पोजीशन और दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन कार्बन. तो जो कार्बन मतलब जो बॉन्ड बनना है वो बनता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अमाइलोज जो होता है उसमें स्ट्रेट चेन होती है ग्लूकोज की. ओके. और ये जो स्ट्रेट चेन है उनके बीच में ये जो बॉन्ड बना है वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन पोजीशन 1 एंड पोजीशन 4. इसीलिए इसे कहा जाता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. आपको याद होगा हमने अल्फा और बीटा के बारे में क्या कहा था, that if the OH is situated at the bottom तो अल्फा, if the OH group is at the top तो उसे कहेंगे बीटा पोजीशन. Amylose is about 20 to 30% of the total starch. मतलब स्टार्च में तो दोनों आएगा, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन. बट मोस्ट ऑफ द टाइम अमाइलोज जो होता है वो 20 to 30% होता है और बाकी का पूरा अमाइलोपेक्टिन होता है. और अमाइलोज जो है इट कैन बी इजीली डीनेचर्ड ऑन हीटिंग. मतलब जब उसे कुक किया जाता है तो आपने देखा होगा कि पोटैटो, when you boil the potato, what will happen? The potato is going to become very soft. So what is the reason for it? So when you are boiling it in water, the amylose part being soluble one, it gets solubilized.
बट अमाइलोपेक्टिन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है और वो सॉल्युबलाइज नहीं होता, इसीलिए पोटैटो सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि उसमें अमाइलोज का पोर्शन तो डीनेचर हो रहा है पर अमाइलोपेक्टिन का पोर्शन डीनेचर नहीं रह होता, एंड देयरफॉर इट रिमेन्स स्लाइटली इंटैक्ट बट इट रिमेन्स समवॉट मोर सॉफ्टर, राइट। सो ऐसे अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट होता है। अमाइलोपेक्टिन की अगर बात करें तो अमाइलोपेक्टिन it is both straight chain with branching, with the branching। तो ब्रांचिंग मतलब क्या, जैसे कि ये स्ट्रेट चेन है तो 1,4 बॉन्ड है, पर जब ब्रांचिंग होता है तो देयर इज वन मोर बॉन्ड फॉर्मिंग दैट इज कॉल्ड 1,6। 1,6 मतलब जैसे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है, दिस इज गोइंग टू लिंक विथ द 6th पोजीशन ऑफ द अनदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है और यहाँ पे 6th पोजीशन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन थे। अगर आपको याद हो तो रिंग का कार्बन तो है ही, प्लस देयर इज CH2OH सिचुएटेड देयर। तो यहाँ पे ब्रांचिंग जो है ये 1,6 पोजीशन पे होती है, मतलब स्ट्रेट चेन तो होगी बट अलोंग विद द स्ट्रेट चेन देयर विल बी ब्रांचिंग एट इंटरमीडिएट पोजीशन। आफ्टर एवरी 25 ग्लूकोज यूनिट्स एक ब्रांच डेवलप होगी, अगेन आफ्टर 25 ग्लूकोज यूनिट्स अगेन अ ब्रांच विल डेवलप। तो ऐसे ब्रांचिंग जहाँ पे देखने को मिलती है वो स्ट्रक्चर है अमाइलोपेक्टिन, and amylopectin is not going to be soluble. Another important thing is amylose के सिर्फ 200 to 2000 glucose units होते हैं। Amylose has only 200 to 2000 glucose units, whereas amylopectin has 2000 to 2 lakh glucose units। 2000 to 2 lakh glucose units को मिलके बनता है amylopectin, and these starch when reacts with iodine, starch when react with iodine it gives blue violet color। तो दिस इज एन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, राइट। अगर आपको देखना है कि कोई भी सब्सटेंस में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, फॉर एग्जांपल आपको जानना है कि पोटैटो में स्टार्च है या नहीं, तो यू कैन डू इज टेक अ स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो इन अ टेस्ट ट्यूब, mash it properly and add a drop of iodine to it। If the color of the potato changes to bluish violet, it ensures that your given substance has presence of starch। Your given substance has presence of starch। तो यहाँ पे याद रखना क्या है कि अमाइलोज में सिर्फ स्ट्रेट चेन ग्लूकोज की होती है, जबकि यहाँ पे स्ट्रेट के साथ साथ ब्रांचिंग होती है। तो स्ट्रेट चेन तो है ही, बट आफ्टर एवरी 25th ग्लूकोज यूनिट देयर विल बी अ ब्रांच दैट इज डेवलपिंग। तो यहाँ पे 2 तरह के बॉन्ड होंगे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जबकि अमाइलोज में सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, so that is all about amylose, amylopectin and the starch। The second important polysaccharide is the glycogen, और glycogen जो है उसे कहा जाता है animal starch। Glycogen is known as animal starch and it is a food storage in बैक्टीरिया एंड एनिमल्स। दोनों में बैक्टीरिया है या तो एनिमल्स हैं, दोनों में फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन। ह्यूमंस में ये स्टोर होता है, ह्यूमंस स्टोर ग्लाइकोजन
in muscles and liver। दो जगह पे ग्लाइकोजन स्टोर होता है, एक होता है मसल्स में और एक होता है लीवर में। अब ये जो ग्लाइकोजन है ये भी, इनमें भी रिपीटिंग यूनिट ग्लूकोज है। रिपीटिंग यूनिट इज ग्लूकोज, ओके। बट रिपीटिंग यूनिट ग्लूकोज होने के साथ साथ ये एक ब्रांच्ड पॉलीमर है। It is a branched polymer, okay? So glycogen is different from starch because starch has unbranched and branched chains both, whereas glycogen is completely branched structure, and each glycogen has about 30,000 units of glucose। एक ग्लाइकोजन की जब बात करते हैं तो एक ग्लाइकोजन में कितने ग्लूकोज यूनिट्स हैं? 30,000 ग्लूकोज यूनिट्स मिला के एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बनता है। सो यू कैन इमेजिन हाउ लॉन्ग द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी एंड हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज गोइंग टू बी, राइट। यहाँ पे स्टार्च में 2 लाख यूनिट्स हैं जबकि ग्लाइकोजन में 30,000 ग्लूकोज यूनिट्स हैं। ग्लाइकोजन when reacts with iodine they will give somewhat reddish color, that is again used for differentiating that whether the given source has starch or it has the presence of glycogen, okay। So here glycogen, that is animal starch, for storage in bacteria and animals, store होता है मसल्स और लीवर में, रिपीटिंग यूनिट ग्लूकोज है, ब्रांच्ड पॉलीमर है और 30,000 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज will be together making up the glycogen। Next we talk about 2 more polysaccharides which are the structural polysaccharides, and that is the chitin as well as the cellulose। So what we have discussed so far is about the 2 types of food storage polysaccharides। तो फूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च और ग्लाइकोजन की हमने बात की थी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स, और जो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनमें सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे काइटिन, ओके। सो यू ऑलरेडी आर फेमिलियर विद द वर्ड काइटिन। काइटिन जो है वो एक पॉलीसैकेराइड है और काइटिन it is very commonly found in the cell wall of plants, cell wall of the fungi as well as in the exoskeleton of the arthropods। So chitin is found in cell wall of fungi as well as in the exoskeleton of आर्थ्रोपोडा। तो जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है जिसमें सब इंसेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, तो उनके एक्सोस्केलेटन में काइटिन इज प्रेजेंट। नाउ दिस काइटिन इज आल्सो known as fungal cellulose। Another word for chitin is fungal cellulose, and the chitin is the second most abundant organic substance। So out of all the organic substance, मतलब प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स है, सबको मिला के सबसे सेकंड मोस्ट अबेंडेंट जो है वो काइटिन है, क्योंकि फर्स्ट मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज सेल्यूलोज। सबसे ज्यादा जो होता है वो सेल्यूलोज होता है, एंड आफ्टर सेल्यूलोज द सेकंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन द होल बायोस्फीयर, दैट इज द काइटिन। ओके, नाउ दिस काइटिन डज नॉट हैव द रिपीटिंग यूनिट ग्लूकोज, मतलब इनमें जो रिपीट होने वाला यूनिट है वो ग्लूकोज नहीं है, instead it is known as N-acetyl glucose
amine. The repeating unit of chitin is N-acetyl glucosamine. ये अगर आपको याद हो तो जब आपने बैक्टीरियल सेल वॉल पढ़ा था तो बैक्टीरियल सेल वॉल में आपने पढ़ा था ये टर्म NAG और NAM, N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. So here it is N-acetyl glucosamine. Chitin वैसे तो एक heteropolysaccharide है, but some of them still consider it to be homopolysaccharide, right? जब हम स्टार्च कहते हैं तो वो होमोपॉलीसैकेराइड है क्योंकि वो सिर्फ ग्लूकोज से बना है। जब हम ग्लाइकोजन कहते हैं तो वो भी होमोपॉलीसैकेराइड है क्योंकि वो भी ग्लूकोज रिपीटिंग यूनिट से बना है। पर जब हम काइटिन कहते हैं तो इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड, but most of the researchers consider it to be homopolysaccharide. The next example after chitin is cellulose. तो सेल्यूलोज भी इतना ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है बिकॉज इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट abundant organic substance. The most abundant organic substance that exists in the whole biosphere is the cellulose, and it is a major component of plant cell wall. कोई भी प्लांट की सेल वॉल कंसिडर कर लो तो सबसे पहला जो सेल वॉल में कंपोजिशन होगा वो सेल्यूलोज। ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल वॉल सिर्फ सेल्यूलोज से ही बन जाता है, सेल्यूलोज के साथ साथ हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन्स ऐसे बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं, पर द मोस्ट डोमिनेटिंग वन आउट ऑफ ऑल इज द सेल्यूलोज। इवन हमने जो एस्कीरिया एग्जांपल देखा था इन द चैप्टर एनिमल किंगडम, जिसमें मैंने कहा था that Ascaria are also known as tunicates. तो tunicates का जो outermost layer होता है that is also made up of cellulose. The cotton, हम जो cotton clothes use करते हैं तो cotton consists of 90% of cellulose. अगर हम wood की बात करते हैं तो wood also consists of about 50% of cellulose. So you can imagine that how immensely the cellulose is present. Wood में भी 50 to 60% cellulose होता है। Cotton clothes जब हम use करते हैं तो उनमें भी 90%. Even हम जो पेपर पे लिखते हैं, that paper is also cellulose. तो cellulose जो है इसमें ये repeating unit जो है वो ग्लूकोज है इसका। Repeating unit is beta glucose. Repeating unit is beta glucose, जिसके nearly 6000 units मतलब 6000 molecules of glucose will be collectively forming a cellulose, right? और ये polymer जो है वो unbranched है, जबकि हमने बाकी के जो पॉलीमर्स देखे जैसे कि स्टार्च था, ग्लाइकोजन था, वो सब ब्रांच्ड थे, right? This will be found in the form of a linear chain, so it will be said to be unbranched. So I am mentioning linear or you can say straight chain के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। Another type of polysaccharides were mucopolysaccharides, और mucopolysaccharides जो है उनमें इंक्लूड होता है जैसे कि अगार और वी कैन से हाइल्यूरोनिडेज इज एन एंजाइम, राइट? तो इसके अलावा केराटिन सल्फेट जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ऐसे एग्जाम्पल्स इंक्लूड होते हैं। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ प्रोटीन्स भी इंक्लूड होते हैं जब हम यूज करते हैं वर्ड म्यूकोपॉलीसैकेराइड।
इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था that when you cut the lady's finger you get the sticky material oozing out of it and that is what it is the example of mucopolysaccharide. अगार जो है वो हमें प्लांट मतलब सीवीड्स जो होते हैं उनमें से मिलता है, या तो फिर आप कह सकते हो ब्राउन algae और रेड algae में से मिलता है, and that is used as a medium for growing the bacteria. बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए मीडियम जो यूज होता है उसमें अगार. हाइलुरोनिडेज जो है, जो हमारे मतलब कनेक्टिव टिश्यूज, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द कनेक्टिव टिश्यूज. कई प्लांट सेल वॉल्स के बीच में भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है वो कार्टिलेजेस में प्रेजेंट होता है, राइट, एंड कार्टिलेज इज एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. केराटिन सल्फेट मतलब हमारी स्किन जो है उसमें, एज वेल एज हमारा जो कॉर्निया है आईज में, वहां पे भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं. सो इन दिस वे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ईच हैविंग a different role. However, they are more complex because they are carbohydrates associated with proteins. So that was all about the topic of carbohydrates. In the next class, we have to discuss about amino acids and proteins. Then we have to discuss about lipids, and then we have to discuss about nucleic acids. In this way, we are going to divide the chapter into different parts for your understanding. For carbohydrates, you will have to prepare all the last 3 lectures, which will give you a total summary of all the carbohydrates.